Krebs cycle, it is the second steps. It is the second steps of the mechanism of aerobic respiration. It is the second steps of the mechanism of aerobic respiration. Krebs cycle is completed. Second point. Krebs cycle is completed in the matrix of mitochondria. किसमें कंप्लीट होता है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है. Krebs cycle जनरली Krebs cycle or TCA cycle is completed in the matrix of mitochondria. Krebs cycle was first discovered or introduced by कौन? An English biochemist. named as Sir Hans A. Crabb. In 1937. So it is commonly called as or popularly known as Krebs cycle. क्या बताएंगे Krebs cycle? Krebs cycle, it is the second steps of the mechanism of aerobic respiration. Krebs cycle is completed. कहाँ कंप्लीट होता है? It is completed in the matrix of mitochondria. Krebs cycle was first discovered or introduced by an English biochemist named as Sir Hans A. Crabb. कौन? Sir Hans A. Crabb in 1937. So it is also called as or popularly called as Krebs cycle. Next point. Krebs cycle is also called as TCA cycle. Krebs cycle को क्या कहते हैं? TCA cycle. देखो यहाँ पे in Krebs cycle different types of acids are formed. दिख रहे हैं यहाँ पे पूरे acids form हो रहे हैं. In Krebs cycle the different types of acids are formed and these acids contain the 3-carboxyl group. क्या होता है? In Krebs cycle the different types of acids are formed. Acids are already दिख रहा है. Acids are formed which contain the 3-carboxyl group. यानी कि हर एसिड में क्या होता है? 3-carboxyl group. So it is called as TCA cycle. Krebs cycle is also called as TCA cycle. क्यों उसको TCA cycle कहते हैं? In Krebs cycle the different types of acids are formed and which contain these acids contain the 3-carboxyl group. So that is also called as TCA cycle. इसको क्या कहते हैं? TCA cycle. Krebs cycle or TCA cycle is also called as cyclic acid cycle. क्या कहते हैं इसको? Cyclic acid cycle ऐसा भी कहते हैं because cyclic acid it is the intermediate product. यानी कि देखो यहाँ पे जो है यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ से अब ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरुविक एसिड. ये रास्ते से आओ या बाईपास, दो रास्ते होते हैं. ये देखो ये वाला जो है ये शॉर्टकट में, ये सीधा बाईपास डायरेक्ट होने वाला. ये अपन लोग इधर सिटी से आए, ये बाईपास. यानी कि यहाँ से क्या ऑक्सियल एसिडिक एसिड इज कन्वर्टेड टू साइट्रिक एसिड. लेकिन यहाँ पे जो ग्लूकोज का कन्वर्जन किसमें था? पायरुविक एसिड फिर एसिटिक में फिर साइट्रिक एसिड. यानी दोनों रास्तों से गया तो भी क्या अंदर हो रहा वहां पे? साइट्रिक एसिड. साइट्रिक एसिड क्या है? इट इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ Krebs cycle. सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज साइट्रिक एसिड साइट. समझाओ क्या क्या बोला और एक बार बोलो सुनो. इंट्रोडक्शन. Krebs cycle it is the second steps of the mechanism of aerobic respiration. Krebs cycle is completed in the matrix of mitochondria. Krebs cycle was first discovered by or introduced by an English biochemist named as Sir Hans A. Crabb in 1937. Therefore, it is popularly known as or commonly called as Krebs cycle. Krebs cycle is also called as TCA cycle. TCA means tricarboxylic acid cycle. TCA means tricarboxylic acid cycle because in Krebs cycle the different types of acids are formed. And these acids contain the 3-carboxyl group. So it is also called as TCA cycle. Krebs cycle or TCA cycle is also called as cyclic
cycle because citric acid is the intermediate product of Krebs cycle. So that is also called as citric acid or isocitric acid. Next one. Krebs cycle is completed in a 10 steps. Completed in a 10 steps. पहला जो आ रहा है, पहला स्टेप डीकार्बोक्सिलेशन. क्या आ रहा है पहला स्टेप डीकार्बोक्सिलेशन. पहले स्टेप्स का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन और फॉर्मेशन ऑफ एसिटल कोएफिशिएंट A. इसको क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एसिटल कोएफिशिएंट A. फॉर्मेशन ऑफ एसिटल कोएफिशिएंट A. अगर आपको वो चीज नहीं आती है एसिटल कोएफिशिएंट A. देखो क्या लिखेंगे, क्या तैयार हुआ था इसके पहले ग्लूकोज के पास से पायरुविक एसिड. ठीक है, यानी कि क्या लिखेंगे सबसे पहले एसिटल कोएफिशिएंट में तैयार होगा. कैसे तैयार होता है? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू, लिखते आता हूं आपको, ग्लूकोज प्लस कोएफिशिएंट A प्लस NAD gives क्या गिव हो रहा है? एसिटल कोएफिशिएंट A, एसिटल कोएफिशिएंट A प्लस NADH2. Reaction is takes place in presence of enzyme called as pyruvate dehydrogenase. Pyruvate dehydrogenase. समझा क्या? क्या बताया देखो, ग्लूकोज पायरुविक एसिड प्लस पायरुवेट P, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड प्लस एसिटल कोएफिशिएंट A. ठीक है, क्या करेंगे? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड. ठीक है, पायरुविक एसिड के पास से क्या करना है? यानी कि ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट A, NAD and NADH. Later on, this pyruvic acid is converted to acetyl coenzyme. Acetyl coenzyme A is combined with OAA to form citric acid. तो समझ में आया क्या बोला? Glucose is converted to pyruvic acid with the help of coenzyme A, NAD and NADH2 in presence of enzymes called as pyruvate dehydrogenase. फिर बाद में क्या होता है? Pyruvic acid is converted into acetyl coenzyme A with the release of carbon dioxide. बाद में क्या होता है? एसिटिल कोएफिशिएंट A is combined with OAA to form citric acid. Reaction is takes place in presence of enzyme called as citrate synthetase. दूसरा रिएक्शन क्या रहेगा? एसिटिल कोएफिशिएंट A प्लस OAA. कहां से आएगा OAA? ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड ऑलरेडी वो मैट्रिक्स में होता है, उसके साथ में ये कंबाइन होंगे. इसके पास से क्या बन रहा है? क्या बन रहा है उसके पास से? साइट्रिक एसिड. OAA gives citric acid. Reaction is takes place in presence of enzymes called as citrate synthetase. समझ में आ गया होगा क्या क्या बोला सॉल्यूशन? Glucose is converted to pyruvic acid with the help of coenzyme A, NADH2. उसके बाद में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिलीज, यानी कि क्या तैयार हो रहा है? ग्लूकोज प्लस कोएफिशिएंट A प्लस NAD gives 2 molecules of pyruvic acid plus 2 molecules of acetyl coenzyme plus NADH2 with the release of carbon dioxide. Reaction is takes place in presence of enzymes called as pyruvate dehydrogenase. उसके बाद में क्या हो रहा है? एसिटिल कोएफिशिएंट तैयार हो गया. एसिटिल कोएफिशिएंट किसके साथ में कंबाइन हो रहा है? OAA विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि एसिटिल कोएफिशिएंट A प्लस OAA प्लस साइट्रिक एसिड प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज साइट्रेट सिंथेटेज. क्या कहते हैं उसको? साइट्रेट सिंथेटेज. यहां तक समझा क्या क्या बोला था मैंने? समझाओ, समझ गए? ग्लूकोज पासून पायरुविक एसिड प्लस एसिटिल कोएफिशिएंट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NADH. यार इधर का इधर वो रहेगा, उसमें रिएक्टेंट में ये रहेगा प्रोडक्ट. फिर एसिटिल कोएफिशिएंट ये तैयार हो गया. एसिटिल कोएफिशिएंट किसके साथ में कंबाइन हो रहा बाद में? OAA के साथ में. और क्या तैयार हो रहा उसके बाद से? साइट्रिक एसिड तैयार होता और एसिड तैयार होता. यानी कि जो है एसिटिल कोएफिशिएंट
A is converted to citric acid plus H2O or acetate A is combined with OAA to form citric acid plus H2O. Reaction is takes place in presence of citrate synthesis. फिर बाद में जो है citric acid बोले तो C-सैचुरेटिक एसिड with the removal of hydrogen water, यानी कि इसमें क्या लिखेंगे डिहाइड्रोजनेशन. डिहाइड्रोजनेशन बोले तो क्या होता है वाटर इज रिमूव. ठीक है, क्या लिखेंगे citric acid is converted to C-saccharic acid with the removal of water molecule. Reaction is takes place in presence of enzymes called as activity. फिर C-saccharic acid का क्या होता है यहाँ पे हाइड्रेशन, यानी कि एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जा रहा है, इसी को क्या कहते हैं डिहाइड्रेशन. पानी निकल जा रहा है, डिहाइड्रेशन हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे रिएक्शन क्या रहेगा साइट्रिक एसिड गिव्स C-saccharic acid plus H2O. एरो के ऊपर भी लिखेंगे एक्टिवेटेड. यहाँ पे क्या है हाइड्रेशन. C-saccharic acid is converted to isocytric acid, यानी कि C-saccharic acid plus H2O gives isocytric acid. एरो के ऊपर भी लिखेंगे एक्टिवेटेड, यानी कि यहाँ पे वाटर निकल जा रहा है, यहाँ पे वाटर गायब हो रहा है. यहाँ पे वाटर निकल जा रहा है, इसको क्या कहते हैं डिहाइड्रोजनेशन और इसको क्या कहते हैं हाइड्रेशन. समझ में आ रहा है. फिर बाद में आता है आइसोसाइट्रिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोसल्फोनिक एसिड. ये रिएक्शन कैसे होगा? यस, रिएक्शन कैसे होगी? आइसोसाइट्रिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोसल्फोनिक एसिड विद द हेल्प ऑफ NAD एंड NADH2. क्या लिखेंगे आइसोसाइट्रिक एसिड प्लस NAD. ये ध्यान है क्या? आइसोसाइट्रिक एसिड प्लस NAD गिव्स ऑक्सैलोसल्फोनिक एसिड प्लस NADH2. एरो के ऊपर भी लिखेंगे आइसोसाइट्रेट डीहाइड्रोजनेज. आइसोसाइट्रेट डीहाइड्रोजनेज, यानी कि एंजाइम्स के नाम ही खतरनाक है. यानी याद आ रहा होगा कि इधर में जो एरो लिखा है वो प्रोडक्ट है और इधर वाली क्या है वो रिएक्टेंट. रिएक्शन कैसे होगा? आइसोसाइट्रिक एसिड प्लस NAD गिव्स ऑक्सैलोसल्फोनिक एसिड प्लस NADH2. एरो के ऊपर भी लिखेंगे आइसोसाइट्रेट डीहाइड्रोजनेज. बाद में आता है बहुत इजी है डीकार्बोक्सिलेशन. डीकार्बोक्सिलेशन में क्या बनाएंगे ऑक्सैलोसल्फोनिक एसिड गिव्स अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड, अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड प्लस CO2 इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेज. समझ में आ क्या बोला? कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव हो रहा है, रिलीज हो रहा है, उसको डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है उसको क्या कहते हैं कार्बोक्सिलेशन. निकल जा रहा बोले तो डीकार्बोक्सिलेशन, ऐड हो रहा बोले तो कार्बोक्सिलेशन. ये स्टेप समझा होगा यहां तक. उसके बाद में अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड, यहां पे आएगा अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड प्लस NAD गिव्स सक्सेसिव एंजाइम A प्लस NADH2. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, यहां पे जो है सक्सिनेट. ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे सक्सिनेट. फिर बाद में आ रहा है नेक्स्ट सक्सिनेट को एंजाइम A. ये वाला रिएक्शन देखो सक्सिनेट को एंजाइम A, सक्सिनेट को एंजाइम A प्लस. अब प्लस क्या आएगा? प्लस क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा. ADP प्लस GDP बराबर है एरो. क्या एरो है? सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड प्लस क्या प्लस ATP प्लस GDP प्लस कोएंजाइम. समझ में आ गया? रिएक्शन इज कैटालाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज. क्या आएगा? सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज. GDP का और GDP का मतलब क्या होता है? ग्लाइडिन डाइफॉस्फेट. GDP का मतलब क्या होता है? ग्लाइडिन डाइफॉस्फेट और GDP का मतलब होता है ग्लाइडिन ट्राइफॉस्फेट. अभी आगे का मतलब, अरे आगे में क्या रहेगा? नाम रखना के बहुत इजी है. सक्सिनिक एसिड प्लस FAD gives fumaric acid plus FADH2 in presence of enzyme fumarate. ठीक है, उसके बाद में क्या आ रहा है? फ्यूमेरिक एसिड प्लस NAD gives OAA plus NADH. फ्यूमेरिक एसिड प्लस NAD gives OAA plus NADH. यहाँ पे क्या
तैयार हो गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, फिर बाद में और से एक्विला एसिटिक एसिड किसके साथ में कंबाइन होगा, एसिटल कोएंजाइम के साथ में। एसिटल कोएंजाइम के साथ में कंबाइन हो तो क्या बनेगा, साइट्रिक एसिड। एसिटल कोएंजाइम भी कहां से आया, ग्लूकोज से पास से बोले तो ग्लाइकोलाइसिस के पास, लेकिन एक्चुअली कहां से आ रहा हो, पायरेनिक एसिड के साथ। पायरेनिक एसिड कहां से आ रहा, ग्लाइकोलाइसिस के पास बोले तो ग्लूकोज के पास। You know during glycolysis one molecule of glucose is converted into two molecules of pyruvic acid.